Hello everyone. Now in our soil mechanics, today we are going to see our next chapter. Our fourth chapter is stability of slope. Now before we going to see our next chapter, in a previous chapter, our most important chapter consolidation of soil, we saw that what is consolidation, how it is defined. Consolidation कैसे define करेंगे? So when the soil is fully saturated, compression of soil occur mainly due to expulsion of water from the void under a static pressure. This process is known as consolidation. कि fully saturated soil है तो उसको हम compress करेंगे at that time जो water होगा soil के अंदर वो expulsion होगा due to compression. So it is called consolidation of the soil. Then after we saw initially primary and secondary consolidation, and then after we saw how consolidation may occur. So it is due to lowering of the groundwater table due to external static load from structure, due to self weight of the recently placed soil, and due to dissection. Then after we saw very most important theory spring analogy for primary consolidation. So it is explained by Terzaghi and it is for primary consolidation. Then after we saw void ratio and effective stress relationship. In this topic we saw compression index, how it is find. So it is Cc equal to E0 minus E upon log 10 sigma dash upon sigma dash 0, where E0 initial void ratio, E void ratio at increased pressure, Cc compression index, and swelling index Cs is equal to E0 minus E log 10 sigma dash sigma 0 dash. Then after coefficient of compressibility, so it is derived from Av is equal to minus delta E upon delta sigma dash is equal to E0 minus E upon sigma dash minus sigma dash 0. Then after we saw coefficient of volume change, so it is Mv equal to minus delta H upon S0 into 1 upon delta sigma dash. Then after degree of consolidation, so it is derived from U equal to E0 minus Et upon E0 minus Ef. Then we saw pre-consolidation pressure, over consolidated clay, normally consolidated clay, under consolidated clay. Then we saw determination of pre-consolidation pressure and Terzaghi theory of one dimensional consolidation and some example based on it. Now our fourth chapter, stability of the slope. So in this chapter some content are included. First of all, introduction, infinite and finite slopes, factor of safety, types of slope failures, stability analysis of infinite slopes. So in this stability analysis of implied slope, there is stability of infinite slope of cohesionless soil, cohesive frictional soil, purely cohesive soil. Then after stability analysis of finite slopes, the Swedish circle method, method of locating center of critical slip circle, stability of slope of earth dam, friction circle method, Taylor stability number, Bishop's method of stability analysis, and method of improving stability of slope, and some example. Now introduction. So an earth slope is an unsupported inclined surface of a soil mass. अर्थ स्लोप किसे बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, स्लोप को हम स्टेबल कैसे करेंगे? तो बिफोर वी गोइंग टू सी अवर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्लोप? स्लोप किसे कहेंगे? सो इट इज़ अर्थ स्लोप इज अनसपोर्टेड, देर इज अ नो एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, सो इट इज़ अनसपोर्टेड इंक्लाइन सरफेस ऑफ द सॉइल मास. ठीक है, इंक्लाइन कैसे बोलेंगे? जैसे कि ये कोई सॉइल मास है हमारे पास, ठीक है, तो एट दैट टाइम दिस इज द स्लोप, इसको क्या बोलेंगे? स्लोप. इंक्लाइन सरफेस, सॉइल मास का जो इंक्लाइन सरफेस है इसे हम क्या बोलेंगे? अर्थ स्लोप.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन अर्थ स्लोप इज अनसपोर्टेड इंक्लाइन सरफेस ऑफ अ सॉइल मास. सो अर्थ स्लोप्स मे बी फाउंड इन नेचर और मे बी मैन मेड. ठीक है, जो अर्थ स्लोप है वो हमें कैसे मिल पाएगा, कैसे फाउंड होगा? इट इज़ इन नेचर, नेचुरली भी होगा, ठीक है, और मैन मेड भी होगा. ठीक है, सो अर्थ स्लोप आर फॉर्म्ड फॉर, ये अर्थ स्लोप क्यों फॉर्म करेंगे? ठीक है, इन सिविल इंजीनियरिंग अर्थ स्लोप क्यों हम फॉर्म करेंगे? सो इट इज़ फॉर्म्ड फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट, रेलवे एम्बैंकमेंट्स, अर्थ डैम और कैनाल बैंक्स, लीवीज एक्सेट्रा. ठीक है, कि हाईवे बैंक प्रोवाइड करने के लिए हम स्लोप प्रोवाइड करेंगे, रेलवे एम्बैंकमेंट के लिए हम स्लोप प्रोवाइड करेंगे, डैम अर्थ डैम कंस्ट्रक्ट करना होगा, एट दैट टाइम हम स्लोप प्रोवाइड करेंगे. कैनाल के लिए ऑब्वियसली कैनाल तो वन टाइप ऑफ दी ट्रेपेजोइडल या रेक्टेंगुलर चैनल होगा. सो इट इज़ ऑब्वियसली इन स्लोप फॉर्म. सो कैनाल बैंक्स के लिए अर्थ स्लोप नेसेसरी है. देन लीवीज के लिए, ठीक है, इरिगेशन करोगे कोई फार्म के अंदर, लैंड के ऊपर, एट दैट टाइम लीवीज आर फॉर्म इन अ फॉर्म ऑफ अर्थ स्लोप. सो फिगर शोज सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ स्लोप. ठीक है, आप फिगर में देख सकते हो कि एग्जाम्पल ऑफ अर्थ स्लोप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाईवे के लिए हम अर्थ स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक के लिए हम स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं. देन कैनाल पास होगी ऐसे, तो जो उसकी जो सरफेस है, आउटर सरफेस, इट इज़ इन अर्थ स्लोप. देन अर्थ डैम, रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करें रिवर के अंदर या कहीं पे भी, सो इट इज़ वन ऑफ दी अर्थ स्लोप. ठीक है, जो वाटर रिजर्व करेगा. सो द स्टेबिलिटी ऑफ दिस एम्बैंकमेंट और स्लोप शुड बी वेरी truly analyzed since their failure may be lead to loss of human life as well as colossal economic loss. ठीक है, जो ये जो स्टेबिलिटी स्लोप की जो करना है एम्बैंकमेंट की, ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप शुड बी वेरी ट्रूली एनालाइज सिंस द फेलियर में बी लीड. ठीक है, जो उसका एनालिसिस करना है, ठीक है, जो एम्बैंकमेंट का, स्लोप का, ठीक है, जो बिफोर इट्स फेल होने से पहले उसको कैसे हमें स्टेबल करना, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एज फॉर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज कोलोसल इकोनॉमिक लॉस. ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ द अर्थवर्क वुड बी मिनिमम इफ द स्लोप आर मेड स्टीपेस्ट. ठीक है, जो आप लोग स्लोप फॉर्म करोगे एट दैट टाइम जो ये स्टीपेस्ट फॉर्म में होगा, सो द कॉस्ट ऑफ द अर्थवर्क वुड बी मिनिमम. ठीक है, सो हाउएवर वेरी स्टीप स्लोप मे बी इन नॉट बी स्टेबल. जो वेरी स्टीप होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा. सो अ कॉम्प्रोमाइज़ हैज़ टू बी मेड बिटवीन इकोनॉमी एंड सेफ्टी. ठीक है, तो अब कॉम्प्रोमाइज़ किसके बीच में होगा? इकोनॉमी प्लस सेफ्टी. ठीक है, जो इकोनॉमी देखने जाएंगे तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करोगे देन उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा. सो कॉम्प्रोमाइज़ हैज़ टू बी मेड बिटवीन इकोनॉमी एंड सेफ्टी. सेफ्टी एंड इकोनॉमी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होना ज़रूरी है. सो द स्लोप प्रोवाइडेड आर नाइदर टू स्टीप नॉट टू फ्लैट. ठीक है, जो स्लोप प्रोवाइड करे, जैसे कि हाईवे एम्बैंकमेंट, रेलवे एम्बैंकमेंट के लिए जो आप स्लोप प्रोवाइड करेंगे, सो वो ज़्यादा स्टीप भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फ्लैट भी नहीं होना चाहिए. सो इन अदर वर्ड्स द स्टीपेस्ट स्लोप विच आर स्टेबल एंड सेफ शुड बी प्रोवाइडेड. ठीक है, जो आप स्टीपेस्ट स्लोप प्रोवाइड करोगे, सो विच आर स्टेबल एंड सेफ शुड बी प्रोवाइडेड. स्टेबल एंड सेफ. So the failure of an earth slope occur when the large mass soil slide or slip along a plane or a curved surface involving downward outward movement of soil mass away from the sloping surface. ठीक है, चलो अब ये जो अर्थ स्लोप है वो फेलियर कब होगा? तो when the large mass of soil कि लार्ज सॉइल मास वो क्या होगा? स्लाइड होगा अथवा तो स्लीप होगा इन अ कर्व सरफेस और अ प्लेन सरफेस पे. वो कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूव ऑफ दी सॉइल मास अवे फ्रॉम दी स्लोपिंग सरफेस. जो स्लोपिंग सरफेस है, ठीक है, स्लोप होगा ऐसा ऑब्वियसली, तो ये सॉइल सरफेस होगा. एट द टाइम ये फेल कब होगा? जो उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ सॉइल मास आएगा. ठीक है,
वो स्लाइड होगा या स्लीप होगा, स्लाइड होगा या स्लीप होगा। एट दैट टाइम क्या होगा, जो कर्व सरफेस होगा वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड सरफेस में, और आउटर मूवमेंट होगा। एट दैट टाइम स्लोप फेल होगा और स्लोप फेल होगा। So the surface along which the soil must slide when the failure of earth slope occur, it is known as critical surface of failure। ठीक है, जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, वो क्या है, विच इज़ इन सॉइल मास स्लाइड व्हेन द फेलियर ऑफ अर्थ स्लोप अकर। ठीक है, जो सरफेस है, ठीक है, ऑब्वियसली जो स्लोप बना है वो वन ऑफ दी सॉइल मास सरफेस। तो जो सरफेस है वो फेल होगा ड्यू टू अर्थ स्लिप, तो इट इज़ कॉल्ड critical surface of the failure। So the failure of earth slope take place mainly due to action of gravitational force। ठीक है, जो अर्थ स्लोप है वो कैसे फेलियर होगा, ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन सीपेज फोर्स विद द सॉइल मास। ठीक है, सॉइल मास के अंदर वाटर सीप होगा, एट दैट टाइम पोरस सॉइल होगी, एट दैट टाइम क्या होगा, सॉइल मास का फेलियर होगा। देन एक्सकेवेशन और अंडरकटिंग ऑफ इट्स फूट। ठीक है, कि ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ दी एम्बैंकमेंट, एट दैट टाइम क्या होगा, एक्सकेवेशन और अंडरकटिंग होगा, एट दैट टाइम क्या होगा, फेलियर ऑफ द स्लोप। देन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल ड्यू टू वेदरिंग एक्शन। ठीक है, वेदर एक्शन होगा ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, सो एट दैट टाइम क्या होगा, स्लोप फेलियर होगा। फोर्स ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आएगा, एट दैट टाइम फेलियर होगा। देन सडन लोअरिंग ऑफ वाटर एडजेसेंट टू द स्लोप। ठीक है, सो हियर फोर्सेस दैट एक्ट ऑन अ अर्थ स्लोप, द फर्स्ट इज इनफाइनाइट स्लोप, सेकंड एन अर्थ डैम, थर्ड सीपेज बिलो नेचुरल स्लोप, देन सडन ड्रॉ डाउन कंडीशन एंड फेलियर ड्यू टू अर्थक्वेक। Now next is the forces which resist the failure are shear strength of the soil and frictional force। ठीक है, कि जो फोर्स आएगा, कौन कौन सा फोर्स आएगा, कि ग्रेविटेशनल फोर्स, सीपेज फोर्स, एक्सेवेशन ऑफ द फूट, ये जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू अर्थक्वेक, ये फोर्स आएगा, उसको जो सॉइल मास उससे रेजिस्ट करेगी। ठीक है, जो स्लोप है, सॉइल स्लोप है, उसे रेजिस्ट करेंगे, तो इट इज़ द shear strength ऑफ द सॉइल एंड फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल बीइंग कोहेसिव और कोहेशनलेस। ठीक है, जो shear strength सॉइल है, shear strength सॉइल की जो shear strength है, और ये जो फ्रिक्शनस हो किस पे डिपेंडेंट होगी, इट इज़ सॉइल कोहेसिव है या कोहेशनलेस। सो द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्थ स्लोप इज इन्वॉल्व्स to determination of the possible failure surface and the force tending to cause slide or slip, to determination of the shear strength of the soil along the slip plane or a slip surface, and determination of the available factor of safety। Now infinite and finite slope। So earth slope may be of two types, so there are two types of earth slope, first is infinite slope and second is finite slope। So in infinite slope, if a slope represents a boundary surface of semi-infinite soil mass inclined to the horizontal and the soil properties for the all identical depth below the surface are constant, it is called infinite slope। So slopes extending to infinity do not exist in a nature, however in a practice, if the height of the slope is very large, it may be considered as a infinite slope। For example, long slope of the face of a mountain, it is the example of the infinite slope। Then finite slope, so it is if the slope is of limited extent, it is called finite slope। The slope of earth dam, slope of highway or railway embankment, canal bank cuts, so it is the finite slope। ठीक है, जो स्लोप ज़्यादा होगा तो इट इज़ इनफाइनाइट, एंड जो कम होगा, स्लोप कम होगा, सो इट इज़ फाइनाइट स्लोप। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप, थ्री टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर नॉर्मली यूज्ड। फर्स्ट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू shear strength, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोहेशन, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन। ठीक है, सो देर आर
three factor of safety for analysis of this slope. So first is factor of safety with respect to shear strength, factor of safety with respect to cohesion, factor of safety with respect to friction. ठीक है. So first of all, what is earth slope? An earth slope is unsupported inclined surface of soil mass. Earth slope may be found in nature or maybe in man-made. These are formed for highway embankment, railway embankment, earth dam and canal bank. Then the failure of earth slope take place mainly due to action of gravitational force, seepage force within the soil mass, excavation or undercutting of its roots, disintegration of the structure of the soil due to weathering actions, forces due to earthquake and sudden lowering of water adjacent to the slope. Now there are two types of earth slope. It is infinite slope and finite slope. Then factor of safety, the stability analysis of slope. Three type of factor of safety are normally used. Factor of safety with respect to shear strength, with respect to cohesion and with respect to friction.